Hello students. Now we will start the new chapter of history, that is second chapter, colonization of India. And in this chapter we will discuss how the middle alien countries or invading countries first started trade in India and then started interfering in the politics of the country, and they ultimately they ruled in India, and this process ultimately known as colonization. First of all, we must understand what is colony. Colony means a country or an alien country that is ruling in the other nation. Okay, rule by the alien country is known as colony, and this process, the settlement and making their trading factories and then their whole system establishing in a particular country is known as colonization. And this process is known as colonization. In this process, an alien country invade or starting trade, and ultimately they use their strategies and then after rule here in the other country. So this way, particularly in India, we will discuss particularly in India, the many countries started trading first and then after ruled here. Now here the first point is important. What were these countries and what is the sequence of these countries who came to India first? Now students, many countries came to India, and first of them was Portuguese. In 1498, Vasco da Gama came to India and traded here, and it was very fruitful for both the countries in India and Portuguese. And when he returned, many sailors from the Portugal came India and traded, but it was not any bit harmful for the country. But gradually, when the British came to India, the second country was the British East India Company, which came in 1600 in India, and then third was Dutch. All these countries started in India with the name of East India Company: Portuguese East India Company, British, Dutch East India Company, and fourth, that was French East India Company, Danish. This way, many countries came here, and Portuguese. After Portuguese, the British and French were the most influential rulers or traders in India. Okay. Now we will discuss these points in detail one by one. Students, here you can understand what is the process of colonization. colonization में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे पोर्चुगीज सबसे पहले आए, वास्को डी गामा जब 1498 में यहाँ पर आए, ठीक है, and he traveled a longest route of that time. वो पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट से पूरा क्रॉस करके इंडियन ओशन से होते हुए फिर साउथ में वो आया, ठीक है, कालीकट पहुंच करके फिर उसने अपना यहाँ के लोगों से ट्रेड स्टार्ट किया, एंड ही वाज वेलकम्ड वेरी मच बाय द इंडियन रूलर दैट टाइम. उस समय रूलर्स ने इनका बहुत वेलकम किया और यहाँ पे खूब अच्छा ट्रेड हुआ, काफ़ी दिन वो यहाँ पे रहे. देन ग्रेजुअली व्हेन ही रिटर्न बैक, many traders of that country, Portugal,
came to India and started their wealthiest trade, but it affected the other countries of Europe also, and one of them, the strongest navy and strongest military of that time was the British, and British started trading here in India, and the Victoria Queen Elizabeth given them 5-year permit for trade in India. उनको 5 साल के लिए ट्रेड के लिए यहाँ पे परमिशन दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई वो कब फॉर्म हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1600 में फॉर्म हुई, और उनको कुछ समय के लिए जो यहाँ परमिट मिली, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर परमिशन लिया सॉरी, and then they started trading here, and Europe overseas the British East India Company was established and granted them charter. उनको यहाँ पे रॉयल चार्टर के थ्रू यहाँ पे परमिशन दिया गया था, रॉयल चार्टर के थ्रू उनको परमिशन दिया गया। वहाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंसर्न था, जिसको वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनके थ्रू वहाँ पे परमिशन के द्वारा उनको कुछ समय के लिए यहाँ पर उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बना करके यहाँ भेजा गया। ये वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव ना होकर के एक कह लीजिए प्राइवेट कंपनी थी जो वहाँ से परमिशन के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई थी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद दे परचेज गुड्स इन द बल्क। अब अभी तक क्या था, बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट, इसके पहले क्या था, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि जो यूरोप है उसके बीच में यहाँ पर मिडिल ईस्ट पड़ता है, मिडिल ईस्ट, और फिर यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे रेड सी के थ्रू हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की जो बहुत सारी वो थी, यहाँ का गोल्ड है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, और यहाँ का बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, कॉटन और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। तो इसलिए ये मिडिल ईस्ट के लोग इसके पहले तक यहाँ से लेकर के और यूरोप में ट्रेड किया करते थे, और इसलिए मिडिल ईस्ट काफ़ी अर्निंग किया करता था। लेकिन जब यहाँ से पोर्चुगीज ने डायरेक्ट यहाँ पर अपनी रेलवे फैक्ट्री बना ली, तो फिर इनका धीरे धीरे इनका कनेक्शन हटा दिया गया, और ब्रिटिश कंट्री ने धीरे धीरे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। दिस वे दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉज ए वेरी रिच ट्रेडिंग कंट्री दैट टाइम। उस समय बहुत रिच था, और यहाँ की जितनी भी वो थी कॉटन का प्रोडक्ट्स थे, उसमें अलग तरह की डिज़ाइनिंग की जाती थी, गोल्ड प्रोडक्ट्स थे, स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में फेमस थे यहाँ से। तो ये सब के लिए उन कंट्री इसने यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ हियर द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ऑल दिस कंट्री विच केम टू इंडिया स्टार्टेड मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का मतलब क्या होता है? मर्केंटलिज्म, मर्केंटाइल मीन्स व्यापार से रिलेटेड होता है। मर्केंटलिज्म मीन्स व्हेन मेनी कंपटीटर्स वर देयर, बहुत सारे कंपटीटर्स हो गए, आपको मैंने बताया है, बट हर कंट्री ये चाह रहा था कि मैक्सिमम गेन उन्हीं को मिले, अदर कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट ना मिल पाए। तो हर कंट्रीज ये पॉलिसी लगा रही थी कि उसी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, अदर कंट्रीज को ना मिले। तो जो ये पॉलिसीज का के थ्रू ट्रेड कर रहे थे, वो इसी को हम मर्केंटलिज्म कहते थे, ठीक है। दिस वे इफ ए कंट्री अप्लाई दैट पॉलिसी ड्यू टू विच अदर कंट्रीज विल सफर द लॉस इन ट्रेड इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म। जिसमें अदर कंट्री लॉस सफ़र करती है और एक ही कंट्री को ज़्यादा फायदा होता है, तो इस प्रोसेस को हम मर्केंटलिज्म कहते हैं। स्टूडेंट, इट वाज द brief introduction of this chapter, and we'll start in detail from the next video, and
it is all about today.